Hello friends, this is Sachin Dodi on behalf of b.ed and I am back with 5 more current affair topics in today's session of 13 February 2021. So let's see what are those 5 news. First one, the first Thunderstorm research testbed of India to come up in Balasore, Odisha. तो हमारा जो ओडिशा है उसके जो राज्य है उसमें बालासोर करके एक जगह है, वहां पे एक थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो कि भारत का पहला ऐसा रिसर्च टेस्ट बेड होगा वो लाने की बात हो रही है। आपको मैं बताऊं ये एक्चुअली में है क्या और ये क्यों किया जा रहा है। तो जो ओडिशा और जो दूसरे ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया के, वहां पे लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से, बिजली गिरने की वजह से कई लोगों की मौतें हुई हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैटेलिटीज एंड ऑल्सो कई लोगों का प्रॉपर्टी की भी बहुत सारी नुकसान हुआ है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैटेलिटीज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड the thunderstorm research test bed will aim to reduce this in the state of Odisha and eastern states. ये एक तरीके का रिसर्च प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं उनको डिकोड किया जाएगा और उनको वापस से टेस्ट में लाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से इसका हल निकाला जाए। ये कौन कौन कर रहा है? सबसे पहली बात, ये जो प्लान है टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड is done by the IMD, that is the India Meteorological Department. IMD will be working jointly with the ISRO, that is Indian Space Research Organization, and DRDO, that is Defense Research and Development Organization, to implement the project. आपको ये सब फुल फॉर्म्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस के ये याद रखने बहुत जरूरी हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। अगले 5 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। The project is currently in the preliminary stage and once finalized, the research unit will be equipped with augmented observational systems such as wind profiler, microwave radiometer, radar and automatic weather stations to study northwestern thunderstorms in Odisha, Bihar, Jharkhand and West Bengal. तो इन राज्यों के अंदर ये स्टडी जो है उसको करने के लिए वेल इक्विप्ड हो जाएगा लेटेस्ट तकनीकी साधनों से, जिस तरीके से एक विंड प्रोफाइलर, एक माइक्रोवेव रेडियोमीटर, रडार, इस तरीके से की जो चीजें हैं वो सब इनको दे दिया जाएगा so that they can do some research on it and do the study and come back with a solution. The IMD, DRDO and ISRO already have their research units in Balasore. They will now be setting up observatories to cater to nearby areas such as North Odisha, West Bengal and Jharkhand, and studies on thunderstorms will be conducted on the test bed. Top academic institutes, तो जो टॉप की एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि IIT खड़गपुर, IIT भुवनेश्वर, NIT रूरकेला, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची एंड महाराजा श्रीरामचंद्र भांजादेव यूनिवर्सिटी एट बारीपाड़ा, ये सब मिल करके they all will be involved to conduct the research on the data that will be shared to them by the test bed. According to IMD, the current observation methods to study the characteristics of thunderstorm, its growth and movement, and the conditions leading to the decaying of the storm is not adequate and need to be enhanced. तो current जो observation है वो पूरी की पूरी तरीके से sufficient नहीं है और there is scope and there is a requirement and need to further study and further research on this. जो IMD डायरेक्टर के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका आप फोटो भी देख रहे हो स्क्रीन पे, डॉक्टर मृत्युंजय मोहापत्रा revealed that a first of its kind monsoon test bed is also being planned near Bhopal. Both research units are currently in the planning stage and detailed project reports are being made. According to the IMD Director General Dr. Mrityunjay Mohapatra, between 2011 and February 2020, almost 3,218 people lost their lives in Odisha due to lightning strikes. तो 2011 से लेकर के अभी फरवरी 2020 तक कम से कम 3,218 लोगों ने अपने जाने गंवाई हैं ओडिशा में बिजली गिरने की वजह से।
Next news, and it's a very big news from the defense sector. Indian Navy's exercise Propex 21 is underway in Indian Ocean. जो ये Propex 21 है, it aims at testing the combat readiness of Indian Navy in a complex multi-dimensional scenario set in the context of the current geostrategic environment. तो एक तरीके की ये युद्ध अभ्यास है, ये इंडिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा, जिसको इंडियन नेवी का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास माना जा रहा है, जिसका नाम है ट्रोपेक्स 21। इसके अंदर किस तरीके से, क्या हम रेडी हैं, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, अगर कोई कॉम्बैट होता है तो मल्टी डायमेंशनल सिनेरियोस क्रिएट करेंगे, एक आर्टिफिशियल सिनेरियोस क्रिएट किया जाता है, और अगर वो असल में असली युद्ध में अगर वैसी सिचुएशन आ जाए तो क्या हम रेडी हैं, वो देखने के लिए ये एक पूरा जो है एक्सरसाइज होगी। द लार्जेस्ट वॉर गेम ऑफ द इंडियन नेवी थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म है, प्रोपेक्स 21 का फुल फॉर्म है थिएटर level operational readiness exercise, which started in early January 2021, is currently underway in the Indian Ocean. The exercise is seeing the participation of all operational units of the Indian Navy, including the submarines, aircraft, ships, as well as the units of the Indian Army, Coast Guard and Indian Air Force. तो सबकी सब चीजें, जैसे कि सबमरीन्स हो गई, एयरक्राफ्ट हो गई, शिप्स, वॉरशिप्स जो है इंडिया के पास, वो सब, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भी, जैसे आपको पता है कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी अलग अलग फंक्शन नहीं करते, साथ में जब युद्ध होता है तो दे हैव टू फंक्शन टुगेदर। तो किस तरीके से वॉरशिप्स के अंदर इंडियन एयरफोर्स वाले होते हैं और वॉरशिप के अंदर से भी जहाज निकाले जा सकते हैं, और किस तरीके से वॉरशिप के अंदर भी इंडियन आर्मी वाले होते हैं और वहां से आर्मी को भी रिलीज किया जाता है। इनफैक्ट इवन इन द एयरफोर्स ऊपर से पैराशूट्स भेज कर भी आर्मी को भेजा जाता है। तो ये सब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिल करके, एंड इंडियन नेवी में भी स्पेसिफिकली एवरीथिंग, इट इंक्लूड सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड द नेवी पर्सनल ऑफ कोर्स। Tropex 21 is being conducted over a vast geographical expanse in the Indian Ocean region, including its adjacent waters. तो जो इंडियन ओशन है वो एरिया में हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है आपको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है वहाँ पे चाइना बहुत, आपको पता है, मैं ओवर एंड अबाउ घड़ी घड़ी बोलता रहता हूँ करंट अफेयर टॉपिक्स में, कि उसको उसके पीछे बहुत सारे देश पड़े हुए हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तानाशाही हो रही है। तो ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है उसको उसमें अगर इंडिया की जरूरत पड़ी तो इंडिया किस तरीके से फंक्शन करेगा उसके लिए है। According to the press release by the Indian Navy, the exercise will culminate by the third week of February 2021. The conduct of the Indian Navy's largest exercise is being overseen by the Naval Headquarters with the participation from all three commands of the Navy and the Tri-Services Command at Port Blair. तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां से उनका नेवल हेडक्वार्टर्स है, ऑल थ्री कमांड्स ऑफ द नेवी एंड द ट्राई सर्विसेज कमांड, सब कुछ वहां से ओवरसी हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एज आई सेड, इट टेस्ट द कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ द इंडियन नेवी इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल सिनेरियो। इट आल्सो एम्स एट वैलिडेटिंग द इंडियन नेवीज ऑफेंसिव एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज, यानी कि किस तरीके से हमको अगर खुद से अटैक करना है तो हम कैसे कर सकेंगे, और अगर किसी ने हम पे अटैक कर दिया तो हम अपना आपको डिफेंड कैसे करेंगे। सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम डोमेन एंड प्रोमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट न्यूज from the international news now. United States set up China task force to tackle challenges posed by Beijing. तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, किसको डील करने के लिए? चाइना को डील करने के लिए, जो भी चाइना उनके लिए तकलीफें, जो चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है उनको डील करने के लिए। पहले आपने देखा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उनका भी चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था। कुछ लोगों को लगा कि जो बिडेन जब बनेंगे प्रेसिडेंट तो थोड़े मेलो डाउन हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि चाइना के मामले में उनकी सोच कोई अलग नहीं है, पूरे देश की एक ही सोच है। तो China Task Force will provide recommendations on the military strategy to the Department of Defense that will help in counter the growing challenges posed by Beijing. The President of the United States, Joe Biden, on February 10 announced the launch of a new China Task Force to provide recommendations on the military strategy to the Department of Defense that will bring in counter growing challenges posed by Beijing.
यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी बोला कि ये जो टास्क फोर्स होगा इट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन एक्सपर्ट्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट, and it will need a whole government effort, strong alliances, partnerships, and bipartisan cooperation of the Congress. So it needs all internal as well as external support for this to function well. During the remark on the task force, the US president mentioned that the country needs to meet the growing challenges that have been posed by China in order to keep peace and defend its interests in the Indo-Pacific and globally. ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ रही है वो भी आपको पता होगा। चाइना के साथ यूएस का जो रिलेशंस है वो आप अगर देखो तो वन बाय वन अगर आप देखो, पहले एक ट्रेड वॉर हो गया था जहां पे चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन वगैरह लगाएगी, बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की बात हुई। देन कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसके ऊपर चाइना के ऊपर ब्लेम करना, ब्लेम नहीं, इनफैक्ट पता नहीं वो सही भी हो सकता है, बट सीधा सीधा आरोप लगाना और ये कहना डब्ल्यूएचओ को कि हम फंडिंग बंद कर देंगे आपकी बिकॉज चाइना को आपने सप्रेस किया है चाइना के फैक्ट्स। एंड देन अभी जो भी हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर जो चाइनीज गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं अमेरिका के, उसके ऊपर भी काफी जो है उनके बीच में मतभेद। और ऑफ कोर्स जैसे मैं घड़ी घड़ी बोलता हूँ इंडो पैसिफिक रीजन में जो जो साउथ चाइना सी में जो सिचुएशन है जहाँ पे अमेरिका के वॉरशिप्स ऑलरेडी आके खड़े हैं, तो वो सब के वजह से कुछ दिनों पहले ही चाइनीज डिप्लोमेट मिस्टर यांग ही हैड वार्न्ड द यूनाइटेड स्टेट्स नॉट टू क्रॉस द रेड लाइन। उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण रेखा पार मत करिए एंड इश्यूज लाइक कोरोना वायरस रिस्पॉन्स, ह्यूमन राइट्स, हांगकांग, ताइवान, ताइवान भी एक मुद्दा है जो देश है जो चाइना बोलता है कि वो मेरी ही कंट्री है, बट ताइवान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और उसको वो हथियाने की सोच रहा है। Xinjiang and Tibet are of China's national dignity, core interest as well as the sensitivities of the 1.4 billion citizens. So, उन्होंने बोला है कि आप पीछे रहिए, आप हमें ज्ञान मत दीजिए और अपनी जो लक्ष्मण रेखा है उसे क्रॉस मत करिए। ये सब होने के बाद ये एक्शन लिया गया जहाँ पे ये एक नया टास्क फोर्स का चयन हो रहा है और वहाँ पे जो भी बीजिंग चैलेंजेस इम्पोज करेगा उसको काउंटर अटैक करने के लिए, काउंटर करने के लिए, and it would have both military as well as civilian experts. Next news, Myanmar's Chin National Army seeks asylum for their families in India's Mizoram. तो जो म्यांमार की चीन नेशनल आर्मी है उन्होंने शरण मांगी है अपनी, उनकी जो फैमिलीज, उनको जो परिवार है कि हमारे परिवारों को इंडिया के मिजोरम जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे आप उन्हें प्लीज रखिए। ये हाई अलर्ट भी इशू हो चुका है एंड द आर्म्ड ग्रुप हैज आल्सो आस्क्ड फॉर asylum of 40 families. This was informed by Mizoram's Champhai district deputy commissioner Maria T.C.T. Zuali. So Chin National Army, which is a Myanmar based armed insurgent group, has sought asylum for their families in Mizoram, India in the wake of military coup and unrest in their country. तो जो military coup हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट करंट अफेयर टॉपिक्स के बारे में आपको मैंने बताया था, जहां उनके जो प्रेसिडेंट है उनको जेल में डाल दिया गया है और वहां पे मिलिट्री आ गई है पावर में, सत्ता में, और वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है लोगों के द्वारा कि प्लीज ब्रिंग आवर प्रेसिडेंट बैक। तो उसकी वजह से जो आर्म्ड ग्रुप है उन्होंने बोला है कि हमारे जो 40 फैमिली है उनको आप प्लीज शरण दीजिए आपके मिजोरम में। तो मिजोरम की जो चाम्फाई डिस्ट्रिक्ट है वहां की जो डिप्यूटी कमिश्नर है मारिया सीटी जुआली, उन्होंने ये खबर दी। जुआली shared that the CNA communicated the matter to the village council president of Farkon, who later informed the Champhai district administration. The matter was later forwarded to higher authorities. इसकी वजह से there is also a high alert issued in Mizoram's border areas. A high alert has been issued by India in the border areas of Mizoram. The district administration has issued a notification to all villages instructing them to inform the district administration if Myanmarese refugees are seen entering their areas. अगर म्यांमार से कोई भी रेफ्यूजी अंदर आ रहा है तो फौरन इन्फॉर्म कर दिया जाए गवर्नमेंट को, उन्होंने ये कहा है। India's Mizoram state shares a 404 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार। तो हमारा जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ मिजोरम में वो 404 किलोमीटर लंबा है। ये जो सीएनएफ है, चीन नेशनल आर्मी, इट्स अ ग्रुप फाइटिंग फॉर द फेडरल यूनियन बेस्ड ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन, एथनिक इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी इन म्यांमार। इनका कोई उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन आप ये बोलो कि अगर उनका उद्देश्य गलत नहीं है तो इंडिया, जैसे कि मैं एनआरसी के बारे में भी जब भी बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है कि जो भी आ जाए उन्हें हम ले लेंगे। तो
म्यांमार की ये जो फैमिलीज हैं, जो जो उनको भी अगर हम ले लें, सबको अगर हम ले लें अपने देश में, तो हम हमारे देश के लोग कहाँ जाएंगे? इट्स लाइक सो मच इन्फ्लेशन विल बी देयर, इतने रिसोर्सेस इंडिया के पास अभी हमारे लिए ही नहीं है, उनके लिए कहाँ से कर लें? तो दैट्स व्हाई वी आर, द स्टैंड इज दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट देम, एंड अगर कोई भी दिखता है रेफ्यूजी तो फौरन इन्फॉर्म किया जाए। Since the last 1980s, thousands of members of the Chin community of Myanmar have fled to Mizoram because of the military junta. Though many returned to Myanmar after democracy was restored in the country, thousands of them are still living in the state, according to the officials. So illegally, अभी भी मिजोरम में वो रह रहे हैं. The Chins of Myanmar and the people of Mizoram share the same ancestry and culture. तो पता नहीं चलता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. उनका जो कल्चर है, उनकी जो एंसेस्ट्री है, वो सब सेम है, दिखने में सेम है, रहना सेम है, खाना पीना सेम है, भाषा सेम है, एवरीथिंग इज सेम. With the Myanmar military taking over the government in a coup, there are apprehensions in the border areas that many Myanmaris from the Chin state and other regions will flee to Mizoram. तो ये थी एक और खबर. Now the last news of last big news, which is kind of a shocker, but not that big of a shocker because we all saw this coming through. The news is Tokyo Olympics chief Yoshiro Mori resigns. अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो ओलंपिक्स हो रहा है 2021 का, वो होगा टोक्यो में. टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान. ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा. इनके जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स चीफ थे, मिस्टर योशिरो मोरी, ही इज स्टेपिंग डाउन. रेजिग्नेशन दे रहे हैं, अपना इस्तीफा दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? हालांकि में उन्होंने ऐसी कोई कमेंट पास कर दी थी रिलेटिंग टू वुमेन, जो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में ले आया है. उन्होंने ऐसा अपने भाषण में ऐसी कोई चीज कह दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वुमेन है वो तो मतलब प्रेशर ले ही नहीं पाती हैं, वो प्रेशर झेल नहीं पाती हैं, एंड इट वाज वेरी सेक्सिस्ट रिमार्क्स. So Yoshiro Mori has come under increasing pressure after he said last week that women have difficulty speaking concisely. यानी कि उनकी भाषा में वो जो बोलते हैं, उनके उसमें कोई ये नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होती है. They don't stable in whatever they say. Tokyo Olympics and Paralympics Organizing Committee Chief Yoshiro Mori stepped down from his position over his remark about women talking too much. यानी कि औरतें बहुत ज्यादा बोलती हैं, which was seen as sexist at home and abroad. So he called them a big mouth kind of. The Tokyo Olympics chief had complained about women's tendency to talk too much and to have a strong sense of rivalry when he was questioned regarding increasing gender diversity among board members of the Japanese Olympic Committee. तो जो जापानीज ओलंपिक कमिटी JOC है, उसके अंदर इंक्रीजिंग जेंडर डाइवर्सिटी यानी कि मेल भी हैं, फीमेल भी हैं. इट्स अ डाइवर्स्ड कमिटी जहाँ पे इट्स नॉट कि मेल डोमिनेंस है या फीमेल डोमिनेंस है. तो उसके बारे में जब पूछा गया, तो जो ओलंपिक्स चीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि जो औरतें हैं वो बहुत ज्यादा बातें करती हैं और उनके पास बहुत ज्यादा सेंस ऑफ राइवलरी होता है कि दुश्मनी जो होती है, कि एक तरीके से कि राइवलरी निभानी, वो उनमें बहुत स्ट्रांग है, ये इन्होंने कहा था. इसके बाद लेकिन उन्होंने अगले दिन एक अपॉलॉजी भी दी थी. उन्होंने प्रेस रिलीज में एक अपॉलॉजी की, उन्होंने सॉरी कहा और उन्होंने कहा कि उनको कोई ऐसा प्लान तो नहीं है स्टेप डाउन करने का, और उन्होंने जो ये बयान दिया था वो गैर जिम्मेदाराना था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा इशू हो जाएगा. So he quoted saying that it was a careless remark and he had no intention of discriminating against women. योशिरो मोरी came under increasing pressure. इसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर डाला गया because he said that the women have difficulty speaking concisely. इसके बाद जो हुआ, the Tokyo Olympics chief had made the comments in a Japan Olympic Committee, which was a meeting held online and open to the media on February 3rd, 2021. The Japan Olympic Committee board has 25 members, among whom 5 are women. The comments were condemned. इसकी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ये कंडेम जताया गया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ जताया गया by lots of sports person, जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा, जो टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं टोयोटा, उनके द्वारा. और आफ्टर दिस it was said that it is against the Olympic spirit. Whatever statement was there, it ran contrary to the Olympic spirit. Though the International Olympic Committee said that they considered the matter closed, they called the remarks completely inappropriate as the backlash grew.
As per the latest media reports, Mori then resigned on 12th of February 2021 एंड उनका जो रेजिग्नेशन है, उन्होंने एक मीटिंग थी जो गेम ऑर्गेनाइजर्स थी, उसमें उन्होंने फिर अपना ऐलान किया. So with this, we finish our today's session. I hope you all enjoyed. Keep reading, keep learning, and do watch all our videos. I would request to please like and subscribe the channel for your own good, because if you subscribe this channel, whenever we come up with a new video, you will get a notification. Bye guys, take care, all the very best.